हाय स्टूडेंट्स, होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्ती तो बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे एंड डेली होमवर्क भी कर रहे होंगे। चलिए, होमवर्क के रिलेटेड भी मैं जल्दी से अनाउंस करने वाला हूँ। टेस्ट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों टेस्ट वेरी सुन आई विल अनाउंस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। अच्छा सॉरी, उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन, आई हैव टू स्टार्ट live solutions of HC Verma. I have to start live solutions of HC Verma from day after tomorrow, that is from Wednesday. Wednesday से start हो रहा है बैच, so get ready for that. सभी ready रहें, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं, मुझे बाद में ध्यान नहीं रहता। चैप्टर 9 12th क्लास रे ऑप्टिक्स में आज हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR शॉर्ट में कहते हैं। TIR क्या होता है हमने 10th में भी पढ़ा था, सुना था, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा हमने। अभी डिस्कस करते हैं जरा, व्हाट इज TIR। लेट अस कंसीडर अ ग्लास स्लैब लाइक दिस, अ ग्लास स्लैब लाइक दिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं। बाहर कौन है? बाहर कौन है? बाहर एयर है। When we will incident a light on this surface like this at some angle, and this is the normal at the surface. This is angle of incidence. As light travels from denser to rarer, light bends away from normal, यानी इधर बेंड हो जाएगी, बेंड होके ऐसे आ गई है, ठीक है। If we will increase the angle of incidence, angle of incidence increase करेंगे तो angle of refraction भी increase हो जाएगा। इंक्रीज करते करते at a certain angle of incidence, at a certain angle of incidence known as critical angle, at a certain angle of incidence known as critical angle, light travels along the surface. Light travels along the surface means angle of refraction becomes 90 degree. Got it? Now if we further increase the angle of incidence, यदि angle of incidence को और ज्यादा increase करेंगे, यानी if I becomes greater than C, angle of incidence इससे भी ज्यादा कर दिया है, what happens now? Light reflected into the same medium starts following laws of reflection. Still ट्रांसपेरेंट स्लैब है, ट्रांसपेरेंट है, बाहर लाइट जानी चाहिए, जा सकती है, लेकिन इस कंडीशन में बाहर जाने की बजाय रिफ्लेक्शन हो जाता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम इसलिए बोलते हैं, कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है इनटू द सेम मीडियम, ट्रांसपेरेंट होते हुए भी। तो दो कंडीशन है TIR के लिए। फर्स्ट कंडीशन इज लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम denser to rarer medium. Second condition is angle of incidence should be greater than critical angle. Then light is totally reflected into the same medium. So what is TIR? When light travels from denser to rarer medium, when light travels from denser to rarer medium and angle of incidence is greater than critical angle, then light is totally reflected. Light is totally reflected
into the same medium, into the same medium, this is known as total internal reflection, TIR। दो कंडीशन पता चली और ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन क्या होती है? शुड आई एक्सप्लेन? क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इफ angle of refraction becomes 90 degree, यानी the angle of incidence for which angle of refraction becomes 90 degree, the angle of incidence for which light travels along the surface, that angle of incidence is known as critical angle। you can write the definition, लिखना चाहो लिख सकते हो, but again मैं बार बार कहता हूँ एग्जाम में कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं पूछेगा डिफाइन क्रिटिकल एंगल, न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। फॉर्मूला डेफिनेशन समझ में आ गई होगी क्रिटिकल एंगल की, इसका फॉर्मूला क्या होगा? अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय sin r is equals to mu 2 by mu 1, got it? And if angle of incidence equals to critical angle, then angle of refraction becomes 90 degree। condition put कर दें, आ गया आंसर। sin of I की जगह आ जाएगा critical angle upon sin R becomes 90 degree equals to mu 2 is refractive index of second medium। लाइट इधर से जा रही है तो ये फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम। refractive index of second medium is air, air का refractive index is 1 by mu 1 is refractive index of first medium, that is mu। So sin 90 is 1, sin C becomes equal to 1 by mu, or C can be written as sin inverse 1 by mu। This is the formula for critical angle for a medium with air। but फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा हम ऐसे याद रखें, sin C by sin 90 equals to mu 2 by mu 1 जरूर याद रखें क्योंकि यहाँ एयर है। बट कई बार ऐसा हुआ है जेईई मेंस में, एडवांस में क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, ऐसे आए हैं जिसमें दूसरा मीडियम इज नॉट एयर, तो वहां पे ये फॉर्मूला में 1 ले लेंगे तो हो गया गलत। सो mu 2 by mu 1 भी याद रखें, एयर के साथ है तो याद रख सकते हैं, बट एयर ग्लास के साथ कोई दूसरा मीडियम है, एयर नहीं है, तो ऐसे में ये बेटर रहेगा। should remember sin I by sin R या sin C by sin 90 equals to 1 by mu 2 by mu 1 is better to remember to solve अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला डेफिनेशन समझ में आई होगी, TIR क्या होता है थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। दिस कैन आल्सो बी रिटन एज व्हाट, वो भी समझेंगे। What are the applications of TIR? TIR के applications क्या-क्या हैं? Applications of TIR, जब भी हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले मोस्टली बच्चे सबसे पहले नाम लेते हैं दैट इज मिराज। दैट इज मिराज। मिराज क्या होता है सबको पता होगा, मिराज कैसे होता है वो समझना है। मिराज का मतलब सभी समझते हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन में
हालांकि पता होगा सबको, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। मिराज जनरली occurs in desert areas. In desert areas क्या होता है मिराज में, समझते हैं जरा, कैसे होता है मिराज में, समझते हैं जरा। Can I discuss? That is, let this is ground, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, लेट मी टेक अ ट्री, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई ट्री मान लेते हैं। देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, बहुत सारे एटमॉस्फेयर में लेयर्स हैं इस तरह से। ड्यू टू हाई टेम्परेचर नियर द ग्राउंड, अर्थ ग्राउंड के पास में टेम्परेचर डेजर्ट एरिया में काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे यहां से ऊपर जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां कम हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे, क्या मैंने बोला, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है। सरफेस का टेम्परेचर इंक्रीज होने से यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, ऊपर जाते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होता है अप टू सर्टेन हाइट, एक सर्टेन हाइट तक। गॉट इट? वो भी क्यों हुआ? टेम्परेचर की वजह से। यानी क्या कंक्लूजन निकला? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टेम्परेचर के साथ रिलेशन क्या होगा? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करता है। गॉट इट? सो यहाँ पे डेजर्ट एरिया में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता चला जाएगा। इससे क्या होगा? मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट ये है, इसकी इमेज कहाँ बनेगी? उसके लिए यहाँ से लाइट आएगी, इस तरह से यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, लाइट बैंड्स डेंसर टू रेयर। मैंने कहा म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाता है, यानी रेयर डेंसर, मोर डेंसर, डेंसर बढ़ता होता चला जाता है, यानी इधर से डेंसर डेंसर रेयर रेयर होता आएगा। सो यहाँ पे लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऐसे आ रही थी, इधर हो गई है। अगेन डेंसर टू रेयर, यहाँ पे फिर से और ज्यादा बैंड हो जाएगी इस तरह से, अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस, इट गोज मोर अवे फ्रॉम नॉर्मल लाइक दिस, एंड इस तरह से लेयर्स में रिफ्रैक्ट होते होते ऐसे ऐसे होते होते एट ए सर्टेन लेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जैसे ही जहां भी होगा वहीं पे TIR हो जाएगा। TIR होगा मींस ट्रांसपेरेंट एयर है, यू कैन इमेजिन एयर, इसमें भी इस तरह से आते आते किसी न किसी पॉइंट पे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा TIR हो जाएगा, लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरह से, ऐसे यहां से रिफ्लेक्ट होते होते ऐसे होते होते इस तरह से जाएगी, और यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है उसे यहाँ पे दिखाई दे जाएगी ना। देखो लाइट इधर से आ रही है, लाइट ऐसे आ रही है, बट इसको इधर से, लेकिन इसको ये लाइट यहाँ से देखेंगे तो ये लाइट यहाँ की बजाय इधर से आती हुई अपीयर होगी। इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रॉ करेंगे लाइक दिस, कि लाइट हमें नीचे से आती हुई अपीयर होगी, यानी इसकी इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी, इस ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। व्हाट इट मेन पॉइंट है, सरफेस है, मिरर नहीं, नॉर्मल ग्राउंड है, बट हाई टेम्परेचर की वजह से डेजर्ट एरिया में जनरली इट हैपेंस, ऑब्जेक्ट की इमेज सरफेस पे ग्राउंड में इमेज दिखाई देती है, दैट इज नोन एज मिराज। डायग्राम से थोड़ा सा मैंने समझाया, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। सेम टाइप का इफेक्ट होता है लूमिंग। लूमिंग सेम टाइप का इफेक्ट है, यानी टाइप का इल्यूजन है, बट इट हैपेंस इन कोस्टल एरियाज। इट हैपेंस इन कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज में क्या होता है, कोई शिप ओशियन में है, उसकी इमेज ऊपर एटमॉस्फेयर में दिखाई देती है, उसकी इमेज ऊपर एटमॉस्फेयर में बन जाती है। हमें लगता है कि शिप एटमॉस्फेयर में हैंग कर रहा है, लटक रहा है, बट रियल में वो ओशियन के अंदर है शिप, बट हमें ऊपर इमेज बन के दिखाई देती है। अगेन मिराज की तरह ही ये भी एक इल्यूजन है ड्यू टू TIR
total internal reflection. Got it? We are talking about applications. Applications of TIR की हम बात कर रहे हैं. बीच में एक क्वेश्चन पूछा गया, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, वो डिस्कस करेंगे और फिर TIR के एप्लीकेशंस पे आगे बढ़ जाएंगे. क्वेश्चन वाज व्हाट? बोर्ड का CBSE बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमें ध्यान से समझना है. व्हाट इज द क्वेश्चन? लेट देयर इज अ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म. मींस ये एंगल 45, ये 90 और ये 45. 3 लाइट रेज, 1 रेड, second green and third blue are incident perpendicularly on this surface. Trace the path of the light rays through the prism. If refractive index is for red color 1.39, for green color 1.44 and for blue color 1.47. इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी कलर्स के लिए गिवन है. इनका पाथ ट्रेस करना है एंड बताना है कि किस लाइट रे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, किसमें नहीं होगा. यहां तो परपेंडिकुलर इंसिडेंस है, सीधी चली जाएगी, सभी सीधी चले जाएंगे. यहां क्या होगा? क्योंकि यहां तो रेयर टू डेंसर था, बट यह डेंसर टू रेयर हो गया. यहां TIR होगा या नहीं होगा समझते हैं. एट दिस पॉइंट नॉर्मल ड्रॉ कर दें. ये सरफेस है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये दिस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस. इस लाइट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? ये 45, ये 90, तो ये भी 45 होगा, और ये टोटल 90 है, ये 45, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा. इसका मतलब है फॉर रेड कलर लाइट व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? 45 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन आई की वैल्यू क्या होगी? क्या फॉर्मूला होगा? साइन आई इज साइन 45 की वैल्यू 1/√2 की वैल्यू 1/√2 इज 1.414. नेक्स्ट, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला. साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर रेड कलर 1/refractive index of red equal to 1/refractive index of red color is 1.39. Let us compare the two. 1/1.414, 1/1.39. क्या साइन लगाऊं? ग्रेटर देन लेस देन. कौन सा साइन आएगा? ग्रेटर देन लेस देन. ऑब्वियसली इसका डिनोमिनेटर बड़ा है तो टोटल वैल्यू छोटी हो जाएगी. मीन्स दिस इज लेस देन दिस. ये क्या है? व्हाट इज दिस? साइन आई. लेस देन ये क्या है? साइन सी. साइन आई लेस देन साइन सी का मतलब है आई लेस देन सी. एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस देन क्रिटिकल एंगल, तो TIR angle of incidence is less than critical angle, so TIR नहीं होगा. TIR क्यों नहीं होगा? अभी कंडीशन हमने पढ़ी थी. so TIR नहीं होगा. मीन्स लाइट इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, दूसरे मीडियम में चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी. This is the diagram for, this is the path for red color. Similarly, if we will talk about green color, ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
और ऐसे क्वेश्चन सभी एग्जाम्स में आ रहे हैं, नीट में, जेई में भी ऐसे यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, स्कूल एग्जाम में भी मिलेंगे। ग्रीन कलर की बात करूं तो ग्रीन कलर में ऐसे जाएगी, या नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, ये भी 45 डिग्री आ रहा है यहां से देखें तो, यानी ग्रीन कलर के लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 45, दैट मींस साइन आई की वैल्यू सेम है 1/1.414। व्हाट अबाउट साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, 1 refractive index of green color 1/1.44। this and this कंपेयर करें तो क्या होगा, 1/1.414 1/1.44। मेरे लिए हमें तो ये देखना होता I लेस देन C TIR नहीं होगा, I ग्रेटर देन C TIR होगा। सो I हम कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, साइन I ये है, साइन C ये है, विच वन इज ग्रेटर, ऑब्वियसली ग्रेटर देन लेस देन, इसमें डिनोमिनेटर 0.41, इसमें 0.44, यानी इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये टोटल वैल्यू बड़ी हो जाएगी। दैट मींस साइन I becomes greater than साइन C, therefore I greater than C. The angle of incidence becomes greater than critical angle, means TIR takes place, TIR होगा। And for last blue color, blue TIR होगा means जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी। दैट इज सेम प्रोसेस शुड अप्लाई फॉर द ब्लू कलर। फॉर ब्लू कलर की बात करेंगे, फॉर ब्लू कलर क्या है, शुड ट्राई एट योर होम, शुड ट्राई एट योर होम, इट इज नॉट डेंजरस। वी आर टॉकिंग अबाउट एप्लीकेशंस ऑफ TIR में। नेक्स्ट एप्लीकेशन कि हम बात करने से पहले एक बोर्ड एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, किसी को भी डाउट है तो प्लीज आस्क। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं होना चाहिए। और भी क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, बट स्टिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने साथ के साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट एप्लीकेशन, totally reflecting glass prisms, totally reflecting glass prisms। उसका एग्जाम्पल मैंने पहले शो कर दिया है, कैसे, let there is a prism like this, इस तरह से कोई प्रिज्म है, इसमें ऑब्जेक्ट सामने रखा होगा, तो ये प्रिज्म ऑब्जेक्ट को कितने एंगल पे डाइवर्ट कर देगी। लेट दिस इज द ऑब्जेक्ट AB, इसकी इमेज कहां बनेगी, TIR कराना है, इस पॉइंट से जो लाइट जाएगी यह TIR होके इधर आ जाएगी, और इस पॉइंट से जो लाइट जाएगी उसमें TIR होके यहां से इधर आ जाएगी, यानी ऐसे बन जाएगा, A की इमेज A डैश, B की इमेज B डैश, ये इमेज बन गई है। मींस ऑब्जेक्ट को 90 डिग्री पे हमने रोटेट करा दिया है। वन मोर थिंग, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ऑब्जर्वर यहाँ, हम यहाँ पे है, हम वहां जाएगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कोई वॉल है, ओपेक वॉल है, हम उधर नहीं जा सकते, तो यहां से वहां क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या सब प्रोसेस वहां पे हो रहा है, कौन वहां पे है, क्या चल रहा है, उसको यहां से वहां जाए बिना, उसके सामने जाए बिना हम उसको यहां से देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी, ये टेक्निक बहुत सिंपल सी है, कई बार हमने पढ़ा होगा, कुछ डिवाइसेस में भी यूज करते हैं, आजकल तो बहुत सारे वेपन्स में भी इंस्टॉल करने लग गए हैं, बहुत जगह पे इनका यूज भी हम करते हैं, वेपन्स में भी यूज करते हैं और भी जगह यूज करते हैं। Got it? नेक्स्ट, और भी ऐसी प्रिज्म जो 90 डिग्री से 180 डिग्री पे रोटेट करा देती हैं, कुछ सेम को सीधा ही इमेज बना देती हैं। तो
मिरर का प्रिज्म का जैसे ही हम रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग उसकी इमेज बनेगी, बट कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट एप्लीकेशन इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। Sparkling of diamond also takes place. Sparkling of diamond also takes place due to TIR. You know that original diamond जो हमें मिलता है नेचर से वो उतना ज़्यादा स्पार्कल नहीं करता, उस डायमंड की कटिंग की जाती है। एंड डायमंड कटिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एंड दोनों आपको पता है नहीं पता है, बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं होगा। डायमंड कटिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जो जिसमें नंबर 1 इज रसिया, सेकंड नंबर पे इंडिया है। डायमंड कटिंग इंडस्ट्री इंडिया में सेकंड नंबर पे है, और बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में डायमंड कटिंग होती है। उसकी शेप, उसको कट इस तरह से किया जाता है कि उसका क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रहे, जिससे वो बहुत ज़्यादा ब्राइटली स्पार्कल करता है। एंड इंडिया में सबसे ज़्यादा डायमंड कटिंग कहाँ होती है, यू नो वेल, सबको पता होगा, डायमंड सिटी सूरत गुजरात काफ़ी फेमस सिटी है सिर्फ डायमंड कटिंग के लिए, डायमंड के बिजनेस के लिए, बहुत बड़ा बिजनेस है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट इज रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन में भी TIR होता है। कैसे होता है, इसी चैप्टर के आगे लास्ट में रेनबो कैसे बनता है उसके लिए हम डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि रेनबो कैसे बनता है। नेक्स्ट इज वन मोर देयर इज दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, काफी फेमस वर्ड है आज के टाइम पे, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर इज अ थ्रेड ऑफ ग्लास। थ्रेड ऑफ ग्लास, ग्लास की बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, उनमें से एक फ्लेक्सिबल ग्लास है, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर हम सब ने देखा भी होगा, कई बार डेकोरेटिव मटेरियल की तरह यूज करते हैं। कई बार हमने मार्केट से खरीदा होगा, छोटा सा नीचे बेस होता है, उसमें से प्लास्टिक के पतले पतले वायर ऐसे ऑल डायरेक्शंस में ऐसे फैल जाते हैं, एंड उसके नीचे छोटा सा बल्ब लगा दें तो हम साइड में से देखें चारों तरफ फैल जाते हैं ऐसे लाइक दिस, फाउंटेन की तरह, और पूरा नॉर्मल हमें दिखता है, बट उनके टॉप जो ऊपर फैल गए हैं फाइबर्स, उनके टॉप मोस्ट पॉइंट बहुत ब्राइटली स्पार्कल करते हैं, यानी सारी लाइट उनके अंदर से बाहर निकलती है, जिससे टॉप उनके जो है ऐसे फैल जाते हैं और हमें काफी ब्राइट अपीयर होता है ड्यू टू TIR। हाँ, एक और पॉइंट, वो काफी सस्ता मार्केट में मिलता है, एंड वो वेरी पुअर क्वालिटी का ऑप्टिकल फाइबर होता है। जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इंटरनेट के लिए यूज करते हैं वो काफी महंगा ऑप्टिकल फाइबर होता है। उसमें क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। इस पे बेस्ड NCERT में क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है, और वही एज इट इज क्वेश्चन IIT एडवांस में आ चुका है, एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है, चेक कर सकते हो। होता क्या मैं समझाऊंगा, फिर वो क्वेश्चन भी आगे डिस्कस करूंगा कमिंग क्लास में। सेंटर में एक वायर है इस तरह से, इसका ये हो जाएगा एक्सेस, इस वायर को बोलते हैं कोर, वायर को बोलेंगे कोर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है μ1। इसके बाहर एक और मटेरियल की लेयर लगा देते हैं इस तरह से, इसे कहा जाता है क्लैडिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एंड μ1 ग्रेटर देन μ2 रखते हैं, जिससे ये डेंसर और ये रेयर हो जाता है। NCERT में क्वेश्चन भी मैं फिर बोलूंगा, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराते हैं, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ तो एयर से एंटर कर रहा है ग्लास में, तो यहाँ से टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होके लाइट ऐसे आ जाएगी, बट यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से, ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हमें रखना होता है। इस एंगल को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि यहाँ पे दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए। डेंसर टू रेयर है, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा तो लाइट
टी आई आर होके इसी के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर यहाँ से इस तरह से टी आई आर होता रहेगा एंड लाइट इसी कोर के अंदर ट्रेवल कर जाएगी। वायर बैंड भी कर दे तो भी इसी के अंदर ट्रेवल करेगी एंड इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। इट ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करेगी, जिससे जो सिग्नल्स हमारा है वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के साथ बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रेवल कर जाता है। दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। कहाँ यूज होता है? कम्युनिकेशन में, इंटरनेट में काफी ज्यादा यूज होता है। कम्युनिकेशन में, इंटरनेट में काफी ज्यादा यूज होता है। Hope all of you got it. That is about applications of total internal reflection. एक छोटा सा क्वेश्चन देके क्लास वाइंड अप करूंगा, सभी ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। वी कैन से एक एप्लीकेशन भी कह सकते हैं इसे। एरिया ऑफ सरफेस थ्रू विच लाइट कम्स आउट। ये मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपने ट्राई करना है। थ्रू विच लाइट कम्स आउट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लाइट कम्स आउट कितना होगा, कब? एक कंटेनर में लिक्विड फिल कर दिया है अप टू हाइट h ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान लें, लेट म्यू। यहां पे हमने लगा दिया एक बल्ब, सोर्स ऑफ लाइट बल्ब हमने लगा दिया है। तो यहां से लाइट ऐसे बाहर निकलेगी, ऐसे बाहर निकलेगी, लाइक दिस। कितने एरिया में से लाइट बाहर आएगी? क्योंकि टाइम के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होके अंदर आ जाएगी। ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि दिस इज होमवर्क टू ऑल ऑफ यू। टीआईआर की कंडीशन यहाँ पे लगेंगी, ये एरिया हमें बताना है, ये HW है, होमवर्क है। बहुत बढ़िया। आज काफी डिटेल में हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा, पहले भी पढ़ा था बट आप डिटेल में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, समझ में भी आया होगा। न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करें एंड होमवर्क पूरा करते रहें और जितने भी डाउट हैं प्लीज भेजते रहें सो दैट आई कैन रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। अगेन टेक केयर, स्टे एट होम। थैंक यू ऑल।